Dear students, in this lecture we have to discuss about the composition of two SHMs having the same period and along the same path. Consider a particle subjected simultaneously to two SHMs having the same period and along the same path but of different amplitudes and initial phases. तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे टू SHMs कंसिडर करेंगे. तो नाउ the equation of displacement of SHM, you know that x is equal to a sin omega t plus phi. This is the general expression for the displacement of SHM. But here there are two SHMs. The period of both the SHMs is same. Initial phases and amplitude are different. So first SHM having the displacement x1. So therefore x1 is equal to a1 sin omega t plus phi 1. This is first SHM. And second SHM, the displacement of second SHM x2 is equal to a2 sin omega t प्लस फाई 2. तो यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है x1 क्या है, x1 फर्स्ट SHM का डिस्प्लेसमेंट है, a1 फर्स्ट SHM का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. तो देयरफॉर पीरियड ऑफ बोथ SHM इज सेम, देयरफॉर हियर इज ओमेगा टी एंड हियर इज आल्सो ओमेगा टी. एंड फाई 1 इज द initial phase of first SHM. For second SHM, x2 is equal to a2 sin omega t plus phi 2. Here also omega t is same as first SHM and a2 is the amplitude of second SHM and phi 2 is the initial phase of second SHM. So resultant displacement at an instant, resultant displacement at any instant t. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यू नो दैट देयर आर टू SHMs. वन SHM का डिस्प्लेसमेंट होगा x1, सेकेंड SHM का डिस्प्लेसमेंट होगा x2. तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. अब यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 plus x2 that is a2 sin omega t plus phi 2. Now therefore x is equal to, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे a1 sin omega t plus phi 1. You know that this is sin a plus b and sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. तो therefore sin omega t यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे because a1 is a common. This is just like sin a plus b. Sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. तो therefore sin omega t cos phi 1 plus cos omega t sin phi 1 and then plus here is a2, this will be common and sin, this is just like sin a plus b. a के जगह पे ओमेगा टी है, b के जगह पे phi 2 है. तो sin a plus b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b. तो ये हो जाएगा sin
ओमेगा टी cos phi 2 प्लस cos ओमेगा टी sin phi 2. दिस इज इक्वल टू A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी A1 sin ओमेगा टी cos phi 1 प्लस A1 cos ओमेगा टी sin phi 1 प्लस A2 sin ओमेगा टी cos phi 2 प्लस A2 cos ओमेगा टी sin phi 2. तो यहाँ पे देख रहे हैं A1 A2 phi 1 A1 A2 phi 1 and phi 2, these are constants, and omega t, these are variables. So therefore let us we arrange all the constants together, collecting all the constants together. So therefore you can write this is equal to A1 क्या है, कांस्टेंट है, तो A1 और यहाँ पे आ जाएगा cos phi 1 और sin ओमेगा टी. sin ओमेगा टी को हम कॉमन ले लेंगे, sin ओमेगा टी दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देयरफॉर A1 cos phi 1 प्लस यहाँ से हमने ले लिया A2 cos phi 2, कॉमन क्या आ गया, sin ओमेगा टी, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो देयरफॉर sin ओमेगा टी एंड देन प्लस यहाँ भी cos ओमेगा टी कॉमन हो सकता है, तो cos ओमेगा टी यहाँ पे भी दिख रहा है और cos ओमेगा टी यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन लेंगे और ऑल जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो देयरफॉर A1 sin phi 1 प्लस A2 cos phi 2, no, A2 sin phi 2, A2 sin phi 2 और कॉमन क्या होगा, cos ओमेगा टी. तो यहाँ पे ऑल कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने ब्रैकेट में लिया, A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी क्या है, वेरिएबल है, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, प्लस A1 sin phi 1 प्लस A2 sin phi 2 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा cos ओमेगा टी. तो यहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स अलग अलग दिख रहे हैं, these all are constants, this is a variable, these all are constants and this is a variable. For our convenient, मतलब आसानी के लिए, इस मैथमेटिकल इक्वेशंस को आसानी के लिए सॉल्व करने के लिए और कन्वीनियंट, हम इस जो ब्रैकेट का टर्म है इसके जगह पे r cos डेल्टा सपोज करेंगे, तो देयरफॉर सपोज दैट r cos डेल्टा इज इक्वल टू A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2 and this is equal to r sin delta. तो therefore r sin delta is equal to this one, A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2. तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2. तो इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज करेंगे यहाँ पे. व्हाट इज दिस? दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो देयरफॉर यू कैन राइट x इज इक्वल टू A1 cos phi 1 प्लस A2 cos phi 2
is equal to r cos delta. So therefore you can write r cos delta at a place of this bracket. जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं वो है a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. इसकी जगह पे हमने लिखा r cos डेल्टा, इसको हमने सपोज कर लिया, एंड साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आता है a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2. इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, r sin डेल्टा. तो देयरफॉर r sin डेल्टा और cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, r को ओवरऑल हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा. इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूं. साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा. You know that sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. a के जगह पे ओमेगा टी और b के जगह पे डेल्टा. तो ये हो जाएगा r sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM. तो therefore resultant displacement is x, resultant amplitude is r, and resultant initial phase is delta. Now in this SHM, x is the resultant displacement, r is the resultant amplitude, and delta is the resultant initial phase. तो r resultant amplitude है. resultant amplitude फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है r cos डेल्टा और दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है r sin डेल्टा. तो नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन यू कैन राइट हियर. इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे स्क्वायर करके. तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे. तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा. यहाँ से r स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो r स्क्वायर यू कैन टेक हियर कॉमन. तो देयरफॉर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा. नाउ यू नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो cos स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू ऑल्सो 1. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया. तो ये हो गया अंडर रूट r स्क्वायर. तो देयरफॉर यू कैन राइट, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये कितना होगा, r के बराबर होगा, r के बराबर होगा. अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r. r की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो देयरफॉर यू कैन से r इज इक्वल टू, अगर पूरे का हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कितना होगा, r के बराबर होगा. जैसे इसका स्क्वायर रूट ले लिया, सबका स्क्वायर रूट लिया, तो ये कितना होगा, r के बराबर होगा. मीन्स यू कैन से r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर कास स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा. मतलब r इज इक्वल टू अंडर रूट r साइन डेल्टा होल स्क्वायर दिस वन प्लस r cos डेल्टा होल स्क्वायर. तो अगर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे. हमारे पास दो इक्वेशंस हैं.
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे और जो आएगा वो आर स्क्वायर आएगा और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जस्ट लाइक दिस इक्वेशन। नाउ हियर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर साइन डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। आर साइन डेल्टा इज इक्वल टू A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 होल स्क्वायर प्लस आर कॉस डेल्टा दैट इज A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2 होल स्क्वायर। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, दिस इज जस्ट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो देयरफॉर यू नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b है तो देयरफॉर A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस 2ab 2 इंटू ab दैट इज A1 A2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस दिस इज आल्सो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देयरफॉर A1 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई 1 प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई 2 प्लस 2 A1 A2 cos फाई 1 cos फाई 2, ये पूरा स्क्वायर रूट में है, ये होल टर्म इज इन स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देयरफॉर this is equal to, this is means r is equal to अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस 2A1 A2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 प्लस A1 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई 1। तो यहाँ A1 स्क्वायर है और साइन स्क्वायर फाई 1 है और यहाँ A1 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई 1 है। तो A1 स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर फाई 1, यहाँ पे आएगा कास स्क्वायर फाई 1, ये ब्रैकेट में आ गया, ये टर्म सॉल्व किया हमने। यहाँ A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 है तो देयरफॉर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 और यहाँ है कास स्क्वायर फाई 2। तो देयरफॉर A2 स्क्वायर विल बी कॉमन एंड साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कास स्क्वायर फाई 2। यहाँ पे 2A1 A2 तो देयरफॉर इन द सेम स्क्वायर रूट 2A1 A2 कॉमन लिया और साइन फाई 1 साइन फाई 2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 और यहाँ पे कास फाई 1 कास फाई 2 तो देयरफॉर प्लस 2A1 A2 इज ए कॉमन। तो साइन फाई 1 साइन फाई 2 और यहाँ पे 2A1 A2 है जो कॉमन है, कास फाई 1 कास फाई 2 तो देयरफॉर प्लस कास फाई 1 कास फाई 2, ये पूरा स्क्वायर रूट में है, होल टर्म इज इन द स्क्वायर रूट। नाउ देयरफॉर दिस इज इक्वल टू
Sin square phi 1 plus cos square phi 1, you know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Here again sin square phi 2 plus cos square phi 2 means sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So therefore this is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 और साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी, ये किसका एक्सपेंशन है? साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास बी. दिस इज जस्ट एक्सपेंशन ऑफ कास ए माइनस बी. This is just expansion of cos A minus B. Sin A sin B plus cos A cos B. This is expansion of cos A minus B. और A के जगह पे क्या है? phi 1. B के जगह पे क्या है? phi 2. तो therefore cos phi 1 minus phi 2. तो देयरफॉर हमने फाइंड कर लिया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ गया. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो अभी तक हमने 3 इक्वेशन फाइंड कर लिया. आर कास डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और सेकेंड इक्वेशन हुआ आर साइन डेल्टा इज इक्वल टू a साइन phi 1 प्लस a साइन phi 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और थर्ड इक्वेशन जो फाइंड किया वह रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फाइंड किया. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2. अब फाइंड करना क्या रह गया? अभी हमको फाइंड करना है इनिशियल फेज. रिजल्टेंट इनिशियल फेज मीन्स इनिशियल फेज डेल्टा. लेट अस वी हैव टू फाइंड इनिशियल फेज डेल्टा. किसका इनिशियल फेज? ऑफ रिजल्टेंट मोशन. ऑफ रिजल्टेंट मोशन. इसको कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे. नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आर साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय आर कॉस डेल्टा इज इक्वल टू a1 साइन phi 1 प्लस a2 साइन phi 2 divided by a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. नाउ r से r कैंसिल हो जाएगा तो therefore you can write sin theta upon cos theta is equal to tan theta. मतलब sin delta upon cos delta is equal to tan delta. तो this will be tan delta is equal to a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 divided by a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. हमको फाइंड क्या करना है? डेल्टा फाइंड करना है. तो अभी तक हमने 3 इक्वेशन फाइंड किया. तो देयरफॉर इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट मोशन इज डेल्टा
and from this equation you can write delta is equal to tan इनवर्स, tan राइट साइड में चला जाएगा और हो जाएगा tan इनवर्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 डिवाइडेड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, and this will be equation number 4. तो अभी हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए। एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की आ गया इक्वेशन नंबर 3, और रिजल्टेंट इनिशियल फेज डेल्टा के लिए आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. Now therefore there are few special cases which we have to study here. Now the special cases, number 1, if two SHM are in phase, दो SHM हैं और दोनों फेज में है, फेज में है मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इन दैट सिचुएशन you can write phi 1 minus phi 2 is equal to 0 degree. So therefore here you can say phi 1 minus phi 2, that is a phase difference. Phi 1 minus phi 2 is equal to 0 degree in case. So therefore you can write cos phi 1 minus phi 2 is equal to cos 0 and cos 0 equal to 1, therefore this is equal to 1. तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2 cos phi 1 minus phi 2, that is 1. तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, एंड दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के जब बाहर लेंगे, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर है, इसको स्क्वायर रूट से जब बाहर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a1 प्लस a2, ये हो जाएगा प्लस माइनस a1 प्लस a2. नाउ इफ a1 इज इक्वल टू a2, a1 और a2 दोनों सेम है, सपोज दैट a1 इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज इक्वल टू a, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू, यू नो दैट प्लस माइनस a1 प्लस a2, तो therefore this will be equal to plus minus a1 is equal to a and a2 is equal to a, तो a plus a is equal to 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2a. तो इन दैट सिचुएशन, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2a, मैग्नीट्यूड विल बी 2a. नाउ इफ टू SHMs आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब दो SHM में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, इट मीन्स यू कैन से phi 1 माइनस phi 2, phi 1 माइनस phi 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो देयरफॉर cos phi 1 माइनस phi 2 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0. Now to find the resultant amplitude using equation number 3, so therefore r is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 and cos phi 1 minus phi 2, cos phi 1 minus phi 2, cos phi 1 minus phi 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इंटू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस
a2 square. Now in case if a1 is equal to a2, if a1 is equal to a2 and this is equal to a, तो r कितना हो जाएगा? Therefore r is equal to under root a square plus a square, that is 2a square. तो स्क्वायर रूट के जब हम बाहर लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2a. Now in third case, if there are two SHMs, 180 degree out of phase, means phase difference of two SHM is 180 degree. It means phi 1 minus phi 2 is equal to 180 degree, and therefore cos phi 1 minus phi 2 is equal to cos 180 degree, and cos 180 is equal to minus 1. So this is equal to minus 1. Therefore resultant amplitude R is equal to, using this equation, this will be under root a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi 1 minus phi 2, that is will be equal to minus 1. तो minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा. तो therefore this is equal to under root a1 square plus a2 square minus 2 a1 a2, means this is the expansion of a minus b whole square. तो therefore a1 minus a2 whole square, जब स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा a1 minus a2, a1 minus a2. तो साइन कौन सा आएगा? a1 minus a2. if a2 is greater than a2 minus a1, तो therefore what is the square root of this one? This will be equal to magnitude of a1 minus a2, magnitude of a1 minus a2, ये हो जाएगा. तो therefore further if a1 is equal to a2 is equal to a, therefore r is equal to, r कितना हो जाएगा? r is equal to under root a minus a, that is 0, a minus a whole square, means this will be equal to 0. So in case if there is a phase difference of 180 degree, then resultant amplitude will be 0. So now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.